Namaskar, everyone, and welcome to the lecture series on theory of errors. This is part 4, and I, Rachna Upadhyay, lecturer, Lakshmi Institute of Technology, Sarigam, welcome you all. So, we have already completed with the determination of error to the field observations, and just for a quick recap, we had solved some numericals. Those were based on this, and according to those we used to apply the corrections to the particular equations, that is C1, C2 and C3. उसके बाद हम करेक्शंस को किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे एंड देन वी यूज टू calculate the corrections. So this was the procedure, and today we'll move further with determination of the most probable values. तो पहले हमने एरर फाइंड कर लिया है कि एरर कैसे फाइंड करते हैं और एरर की वैल्यू क्या आनी चाहिए वो हमने देख ली है. तो आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. तो फॉर दैट वी नो कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की उसे कैसे डिफाइन करेंगे कि वो ये क्वांटिटी है कि जो सबसे सही है, मतलब जिसके चांसेस है सबसे ज़्यादा सही होने के. सो द मोस्ट प्रोबेबल क्वांटिटी इज दैट विच हैज़ मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू देन एनी अदर. सो बाकी जितनी भी गिवन क्वांटिटीज़ है उसमें से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो क्वांटिटी है कि जिसके ज़्यादा सही होने के चांसेस है. और वो हम लोग कैसे पता करते हैं? सो इट इज़ बीइंग डिड्यूस्ड फ्रॉम सेवरल मेजरमेंट्स, एंड इन प्रैक्टिस देर आर दिस फॉलोइंग 5 केसेस which may arise and from which we would be finding the most probable value. So the case 1, that is when the direct observations are given of equal weights, then next is of unequal weights, then indirectly observed quantities involving unknowns of equal weights, and case 4 is what? It is indirectly observed quantities involving unknowns of unequal weights, and then the last one, it is observations and equations which are accompanied by some conditioned equation. So we'll see one by one. So that is case 1, which is very familiar to us. So that is the direct observation of equal weights. मतलब जब हमारे पास observations हमारे पास होते हैं और सभी के weights equal है, तो ऐसे में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? उसकी मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, अरिथमेटिक मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, और उसी को इक्वल बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से. सो द वी ऑलरेडी नो दिस केस, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज ऑफ इक्वल वेट्स, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज. तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है V1, V2, V3, तो उसकी मीन वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है. सो वी आर फैमिलियर विद दिस. सिमिलरली विद द केस 2, दैट इज अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस अनइक्वल वेट्स के हैं, मतलब किसी का है 3, किसी का है 5, किसी का है 6, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन. So we have already proved this, and the most probable value of an observed quantity of unequal weights, and that is equal to the weighted arithmetic mean of the observed quantities. So if n is the most probable value, then we have that n is equal to the W1 into V1 plus W2 into V2 plus W3 into V3 up till Wn into Vn, and it is divided by the sum of the weights. So here W1, W2 respectively are the weights of the observed quantities, and our observed quantities are V1, V2, V3, and this is nothing but the weighted arithmetic mean. So in दोनों केसेस पे हमने सम्स भी सॉल्व किए हैं प्रीवियस लेक्चर में. So we are very familiar with this 2 cases. So we'll directly move with case 3 and case 4.
जिसमें इनडायरेक्टली ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज है इक्वल वेट्स के लिए और अनइक्वल वेट्स के लिए. तो व्हेन द अननोन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सी वन थिंग इज क्वांटिटी, ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी, और दूसरा होता है अननोन्स. तो ये दोनों चीज़ें अलग है. तो अगर अननोन्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, so we can find out the most probable value by forming normal equation. now ये जो term है normal equation, that is a bit new for us, so we'll see today कि कैसे normal equations हमें मिलते हैं. सिंपल मैथ्स के ही रूल्स लगाने हैं. so whenever the unknowns are independent of each other, the most probable value can be found by forming the normal equations for each of the unknown quantities. मतलब सारी unknown quantities के लिए हमें normal equation बनाने हैं और फिर उसको ट्रीट करना है दूसरे simultaneously equations से, जिससे हमें unknowns की वैल्यू पता चले. और ये नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए भी देर आर सम रूल्स. सो विल सी देम बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल्स. सो लेट अस मूव टू द एग्जाम्पल फर्स्ट. सो वी हैव बीन गिवन 3 एंगल्स and we have been asked to find the most probable value of angle A. so हमारे पास एक है एंगल A, then it is 3A और दूसरा है 4A. तो यहाँ पे हमारे पास अननोन कितने हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है. तो उसके रिगार्ड में हमारे पास इक्वेशन कितने बनेंगे? नॉर्मल इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ. तो विल गेट नॉर्मल इक्वेशन ऑल्सो 1 ओनली. जितने अननोन्स हो गए उतने ही हमें नॉर्मल इक्वेशन बनाने हैं. दैट इज द क्लियर फंडा. एंड ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ इक्वल वेट्स. अभी यहाँ पे हमें वेट्स दिए नहीं है, तो वी कैन अज्यूम दैट दिस ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ इक्वल वेट. मतलब चाहे 1 हो सबके या फिर 3 हो, बट दोज आर इक्वल. तो अभी देर आर 2 रूल्स फॉर नॉर्मल इक्वेशंस. रूल 1 क्या कहता है कि इफ वी वांट टू फॉर्म नॉर्मल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द अननोन क्वांटिटीज, मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन इक्वेशन by the algebraic coefficient of that unknown quantity in that equation and add the results. Coefficient of that unknown quantity in that equation and add the result. What we need to do is that यहाँ पे आप देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 4. तो जब हमारे पास इक्वल वेट्स के इक्वेशन हो और हमें नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो व्हाट वी विल डू, विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशंस, मतलब ये इक्वेशन विद देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स. मतलब इसका कोएफिशिएंट 3 है तो ये इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. इसका कोएफिशिएंट 4 है तो ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. तो ये रूल 1 है. और फिर ये सारे, अभी इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. फिर ये सारे रिजल्ट्स को हम लोग ऐड कर देंगे. सो विल ऐड ऑल दिस रिजल्ट्स. सो व्हाट वी विल गेट, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस प्रोसीजर. सो व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विथ 1. तो मतलब ये हो गया a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री 28 मिनट एंड 40 सेकेंड्स. फिर ये वाला जो इक्वेशन है विल मल्टीप्लाई इट विथ 3. तो इट विल बिकम 9a दैट इज इक्वल टू 274 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकेंड. देन विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 4. तो व्हाट वी विल गेट 4 into 4 that is 16. So 16a equals to 487 डिग्री 38 मिनट एंड 0 सेकेंड. तो मतलब अगर आप
इन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें 3 से और 4 से, तो यू विल गेट दीज टू इक्वेशंस एंड देन फाइनली वी हैव टू ऐड दिस रिजल्ट्स. तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 16 प्लस 9 प्लस 1, तो यू विल गेट 26a दैट इज इक्वल टू, ये तीनों का आपको समेशन करना है. तो यू विल गेट 792 डिग्री 24 मिनट एंड 25 सेकेंड. ये इक्वेशन जो हमें मिला है, उस इक्वेशन को विल से इट एज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ए, ओनली दिस इक्वेशन. So from this equation we can find out the value of A, and that is equal to 30 degree 28 minute 37.9 second. So in this way we can find out the most probable value of A. So whatever the coefficient is given, you just multiply it with the same value. 4 दिया है तो 4 से multiply करो, 2 दिया है तो 2 से multiply करो. दिस इज वॉट रूल 1 सेज. अगर इक्वल वेट्स है तो देर इज ऑल्सो वन अल्टरनेटिव सोल्यूशन इन विच वॉट वी डू इज एवरी वन इज हैविंग इक्वल वेट. सो वॉट वी डू इज दैट, जो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 3, तो यू वॉन्ट गेट दिस वैल्यू. आपको वैल्यू वो नहीं मिलेगा. यू विल गेट सम अदर, यू विल गेट सम 90 डिग्री 26 सेकेंड एंड 30 मिनट, ऐसा कुछ वैल्यू आपको मिलेगा. सो दिस इज नॉट द ट्रू वैल्यू. तो वॉट वी डू इज दैट वी डिवाइड दैट इक्वेशन बाय 3. तो हम ये वाले इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे. तो वॉट विल गेट 30 डिग्री 28 मिनट 38.33 सेकेंड. और उसका वेट क्या होगा, जो गिवन वेट है, लेट अस अज्यूम कि सारी क्वांटिटीज़ के वेट 1 है, तो वेट 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट है 3. सो इट इज़ 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 द होल स्क्वायर. तो उसका हो जाएगा वेट 1. सो सिमिलरली जो ये वाला इक्वेशन है, इफ़ यू डिवाइड इट बाय 4, देन यू विल गेट विच वन, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एस 30 डिग्री 28 मिनट एंड 37.5 सेकेंड. और उसका वेट किसके इक्वल मिलेगा, उसका वेट आपको इक्वल मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1/4 द होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 16. एंड देन बाय फाइंडिंग द वेटेड अरिथमेटिक मीन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. और उसमें हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट सम ऑफ वेट्स, मतलब कैसे कि 1 + 9 + 16, तो ये 1 + 9 + 16 हो जाएगा 26. और वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई द वेट विद द डिफरेंस. मतलब यहाँ पे 30 डिग्री 28 मिनट, ये जो दो वैल्यू है वो हर जगह सेम है. सो इसलिए ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे कॉमन लिया है. फिर 40 जो सेकेंड है उसको मल्टीप्लाई किया है 1 से. 37.5 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ 9 बिकॉज उसका वेट 9 है. Then 38.33 is being multiplied by 9 and 37.5 is multiplied by 16. So by this method we can find out the most probable value of A. So it goes on like this, that is weighted arithmetic mean A, that is equal to 30 degree 28 minute plus 1/26. Now 26 is what, it is the सम. तो अल्टीमेटली हमने ये न्यूमेरिकल प्रीवियस लेक्चर में देखा था. सो यू कैन ऑल्सो डू बाय दिस वे और एल्स बाय फॉर्मिंग द नॉर्मल इक्वेशंस, दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय द कोएफिशिएंट. नाउ लेट अस सी वन अनदर एग्जांपल. नाउ हियर वी हैव बीन गिवन द इक्वेशन ए एस 30 डिग्री 28 मिनट एंड 40 सेकेंड, जिसका वेट 2 है, एंड
another one, that is 3a, that is equal to 91 degree 25 minute 55 second with 3 weight. So whenever the weights are different, what we do is, that is rule 2, that is the second rule for the normal equation, which says that to form normal equation for each of the unknown quantities, multiply each observation by the product of the algebraic coefficient of that unknown quantity in that equation and the weight of the observation and add the result. मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है और वेट 2 है, तो ये वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 मतलब 2 से. सिमिलरली ये वाला जो है इक्वेशन, उसका कोफिशिएंट कितना है 3 और वेट कितना है 3. सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9 से, एंड फिर दोनों रिजल्ट्स को ऐड करके हम फाइंड कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट बीइंग डन ओवर हियर, दैट इज this equation is multiplied, this equation 1, it is multiplied by 2. How come 2? That is coefficient of a, it is 1, and the given weight 2. So this is according to the second rule for normal equation. So 2a, that is equal to 60 degree 57 minute and 20 second. So I have also mentioned the explanation कि कैसे 2 से multiply किया. Similarly, the second equation is to be multiplied with 9. So how 9? That is weight is 3 and the coefficient is 3. So from this second rule, what does it says, that it is to be multiplied by the product of the algebraic coefficient and the weight. So 3 into 3, that is multiplied by 9. So we do this way. और यही explanation मैंने यहाँ पे दिया है. So it is to be multiplied by 9. So 3 into 9, that is 27. A equals to 822 degree 53 minute 15 second, and then finally we add up these two equations. So we get 27 plus 2, that is 29a, that is equal to 883 degree 50 minute and 15 second. तो ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए. फिर इसमें से हम ए की वैल्यू पता कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 30 डिग्री 28 मिनट 38.5 सेकेंड. सो ओनली वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि जितने अननोन्स है उतना ही नॉर्मल इक्वेशन बनाना है. अगर 2 अननोन हो गए तो हम लोग 2 नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे. So similarly, remembering only these 2 rules for the normal equation will calculate the most probable value. Similarly, जैसे कि we have seen for the previous sum, we can also have the alternative solution for this one. So that is what we have to find the weight of this. So इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट 1 है और वेट कितना है 2. सो वी डोंट नीड टू एक्चुअली फाइंड द वेट ऑफ दिस. व्हाई? बिकॉज इसका कोफिशिएंट 1 है. व्हाट इज हैपनिंग विथ दिस इक्वेशन, दैट दिस इक्वेशन, इसका कोफिशिएंट 3 है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हाउ विल फाइंड द वेट ऑफ this quantity, that is a is what 91 degree 25 minute 55 second, मतलब ये वाला. so that is to be divided by 3. वो जो वैल्यू आई ये वाली, इसका वेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 3 divided by 1/3 the whole square. so this are we are finding out this weight that is according to the laws of weight. so ये जो क्वांटिटी है उसका वेट 27 आएगा और ये 3 से क्यों डिवाइड किया है, बिकॉज द गिवन वेट इज 3 ओवर हियर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इक्वेशन, दैट इज इसका ऑलरेडी कोएफिशिएंट 1 है. सो देयर इज नो नीड टू डिवाइड और मल्टीप्लाई. सो डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज हैविंग वेट 2, but we don't know the actual value of a for this equation. So we have found that a comes out to be
30 degree, 28 minute and 38.33 seconds, for whose the weight is coming out to be equal to 27. So the weight of this is 2, it is 2, and weight of this is what? It is 27. So 3 it is already given. So जो weight दिया रहता है उससे हम लोग divide करते हैं reciprocal से. So the sum of weights, it is 2 plus 27, that is 29, and the value of A, again we have found out the arithmetic mean only. 1 by 29 से divide किया है. Why? Because sum is coming out to be 29. And the weighted arithmetic mean is coming out to be equal to 30 degree, 28 minute, 28 minute and 38.45 seconds. So this is nothing but the weighted arithmetic mean, and this is equal to the most probable value. So if you go to C, by both the methods will find some more difference, because see, when we were doing it with the help of normal equation, it was coming out to be equal to 38.5 seconds, whereas in this, by finding out by the method of weighted arithmetic mean, it is coming out to be 38.45 seconds. So near about some or more difference would come, minute difference would come, and that is totally fine. So next time we shall see how to calculate the most probable values when two unknowns are given, and how to form the normal equations for that particular unknowns. So till then, stay safe and thank you very much. And next time we shall see some more numericals based on this normal equation only, and after that we'll move further with the last case. So thank you very much. Thank you.